20 जुलाई को दिल्ली में हिंसा को लेकर अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस के परिजनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पुलिस कर्मियों के परिवार वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पुलिस जवान की बेटी गुंजन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरे पिता फ्रंट लाइन पर थे, जब वो घर आते थे तो कहते थे कि ये अब स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा, इसमें गलत लोग भी जुड़ गए। 20 जुलाई को मेरे पिता के साथ उन्हें रात 10 बजे घर लेकर आए। मतलब इस तरह की बातें तमाम पुलिस कर्मियों के परिवार वालों की तरफ से की गई। कुल मिलाकर यह बताया गया उनकी तरफ से कि उन पर 20 जुलाई की हिंसा के बाद क्या बीती। इस खबर को आगे विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अभी सीधे रुख करेंगे सदन की कार्यवाही का। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ऑफ कॉमर्स लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही इस वक्त चल रही है, सुनते हैं क्या हो रहा है। राज्यसभा डेटेड 24 September 2004 under Rule 266 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Council of States. I would like to make the statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 26th report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj pertaining to demand for grants 2026 and 27 in respect of Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, as mentioned before my name at serial number 3 sub 2 in today's revised list of business. Thank you. Through Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 22nd report 18 Lok Sabha of the Department related Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology on review of mechanism to curb fake news pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you. Statement regarding government business through Dr. L. Murugan ji. Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the week commencing from Monday, the 3rd August 2026 will consist of number 1, consideration of any items of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. Number 2, consideration and return of the Supreme Court number of judges Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the registration of births and deaths Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 4, consideration and passing of the following bills after they are introduced, considered and passed by the Lok Sabha. Number 1, the Indian Statistical Institute Bill 2026 and the Bankers Books Evidence Bill 2026. Number 5, consideration and return of the appropriation bill relating to demands for excess grants for the year. और आपको हम जो दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं वो विपक्ष के तमाम सांसदों के प्रदर्शन की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। और देखिए उनके हाथों में बैनर है। बैनर पर क्या लिखा है? अमित शाह संसद से गायब क्यों? लगातार इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस तरह का प्रोटेस्ट भी हमें देखने को मिला, कल भी देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के लोगों ने अलग तरीके से किया और अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम सांसद संसद परिसर के अंदर ही, यानी कि सदन के बाहर वो इस वक्त ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आमोद राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आमोद, लोकसभा फिर 12 बजे के लिए स्थगित, वहीं दूसरी तरफ अभी भी हम देख रहे हैं कि विपक्ष के सांसदों का प्रदर्शन लगातार जारी है और इस बार सवाल तो अमित शाह को लेकर।
बिल्कुल, देखिए जो प्रश्न सदन के बाहर विपक्ष उठा रहा था उसी प्रश्न को लेकर सदन के अंदर भी गया था। कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल हैं गृह मंत्री की अनुपस्थिति को मुद्दा बनाकर लगातार ये मांग करें कि गृह मंत्री सदन में आए, बयान दें और ये बताएं कि छात्रों पर किसने गोली चलवाया। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी चंदा चोरी मसले को, अयोध्या में जो चंदा चोरी हुआ था उस मसले को बढ़ा चढ़ाकर सदन में लगातार अपनी मांग कर रही है कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए और इसमें जो शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये दोनों इशू आज लोकसभा में जब बाहर प्रदर्शन खत्म करके सारे सांसद अंदर गए और अंदर में जाकर जैसे ही स्पीकर अपने चेयर पर बैठे तो लगातार इन्हीं दोनों विषयों को लेकर हंगामा होता रहा और उसके बाद सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो कुल मिलाकर आज जो स्थिति है वो देखने में यही लग रहा है कि पिछले 3-4 दिनों से जो स्थिति बनी हुई है लगातार उसी को आगे बढ़ाते हुए आज विपक्ष जो है फिर से हंगामा करता रहेगा और सदन की कार्रवाई का कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा। बिल्कुल फिलहाल तो कोई रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। ऑपोजिशन अपनी डिमांड पर अड़ा हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी लगातार जेन जी के समर्थन में बयान देने की कोशिश करते हुए और यह कहते हुए कि जो मौजूदा नेतृत्व है, जो सरकार है, वो जेन जी से कट चुकी है, पूरी तरह से अतीत की तरफ ज्यादा देखती है। और कुल मिलाकर हो क्या रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। दिनेश गौतम हमारे साथ, हमारे सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। दिनेश, देखिए फिर वही कल परसों वाली तस्वीरें ही सामने आ रही हैं। लोकसभा में वही कहानी बार बार रिपीट होती हुई दिख रही है। विपक्ष का हंगामा, एक बार फिर लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है, वो भी तब जबकि एंटी पेपर लीक बिल संसद के दोनों सदनों से पास कराया जा चुका है। लेकिन अब हंगामा बरपा है कि आखिर गैर मौजूद क्यों हैं गृह मंत्री अमित शाह। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाते हुए ऐसा लगता है कि एक बिसात बनाई गई है, एक जैसे चक्रव्यूह बनाया जाता है कि ये जो पेपर लीक से संबंधित मुद्दा है उसमें उसके जो फ्रिंज एलिमेंट्स भी साथ में लाए गए हैं, उसकी पेरीफेरी में जो मुद्दे हैं वो भी साथ में लाए गए हैं, जैसे पैलेट गन का मुद्दा, छात्रों पर बल प्रयोग का मुद्दा और उसको लेकर गृह मंत्री से जवाब की मांग। वरना गृह मंत्री के खिलाफ एक रणनीति वो तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन ये भी रखा गया है साथ में कि इसके बाद अगला मुद्दा कौन सा बड़ा करना है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि चढ़ावा चोरी को पैरेलल लेकर चला जा रहा है विपक्ष की तरफ से। हालांकि आज ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री आज सदन पहुंच सकते हैं। जन्म मृत्यु पंजीकरण के संदर्भ में जो बिल लेकर सरकार आ रही है उस संदर्भ में बात करने के लिए। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ज़रूर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अगर आप कंपेयर करें, कल जब इस वक्त एडजर्न किया गया था लोकसभा को तो सीधे शून्यकाल को भी पास कर दिया गया था और ये लगता है स्पीकर को दिखाई दे रहा था उस वक्त कि आज शून्यकाल भी नहीं चल पाएगा। आज कम से कम ये दिखाई दे रहा है उसके कंपैरिजन में कि अभी ज़रूर एडजर्न की गई है, लेकिन शून्यकाल के समय लोकसभा एक बार फिर से बैठेगी और ये देखेगी कि कार्य चल सकता है, सुचारू चल सकता है। स्पीकर ये बात देखेंगे तो शायद। दिनेश, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जरा, जो बीच में पीसीआर से प्ले हो रही हैं, वो तस्वीरें आप देखिए। ये जो पप्पू यादव हैं आज बिल्कुल साधु का भेष बनाकर बीच में बैठे हैं, दान पात्र रखा हुआ है और बारी बारी से विपक्ष के तमाम सांसद वहां आ रहे हैं और चंदा डालते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब पूरा एक तरह का हम इस वक्त ड्रामा होते हुए देख रहे हैं और संसद की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। स्पीकर ओम बिरला की तरफ से अभी कहा गया, मतलब संसद की कार्यवाही को, लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करने से एंड पहले कि कुछ जो सांसद हैं वो भेष बनाकर आ जाते हैं, ये नहीं होना चाहिए और एग्जैक्टली वही होता हुआ नजर आ रहा है। और ये पहली बार नहीं है ना, पप्पू यादव उस दिन भी जब विरोध के लिए उन्होंने सिर पे पट्टी बांधी हुई थी, हाथ में लठ लेकर पहुंच गए थे वो। हाँ। और वो लठ लेकर पार्लियामेंट के भीतर तक जाने की कोशिश कर रहे थे और उस समय वहाँ गार्ड से उनको रोका था और ये कहा था कि ये ठीक नहीं रहेगा, आप ये क्या कर रहे हैं, आप ये लठ लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। तो उस दिन तो वो लठ लेकर और सिर पे पट्टी बांधकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि छात्रों के साथ बल प्रयोग हुआ और चंदा चोरी के मामले में, चढ़ावा चोरी के मामले में ये स्थापित करने के लिए कि अंदर के लोग भी घुले मिले हैं, वो आज पुजारी बनकर पहुंच गए। तो ये जो हर दिन, और ये इसी बात के लिए आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, आज स्पीकर ने वार्न किया कि संसद की मर्यादा संसद परिसर के भीतर और सदन के भीतर दोनों ही ये नहीं होना चाहिए और ये गरिमा के अनुरूप काम नहीं किया जा रहा है। और मैं इसकी चेतावनी देता हूँ और ये गंभीर है
कि सिर्फ ये नहीं कहा गया है कि आप ये जो कर रहे हैं ये अनुचित है, उन्होंने कहा कि मैं चेतावनी देता हूं कि जो वेश बदल बदल कर लोग आ रहे हैं और यहाँ पर ये काम कर रहे हैं जो कि संसद की गरिमा, मर्यादा और शुचिता के अनुरूप नहीं है, उनको मैं चेतावनी दे रहा हूं। तो ये भी एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर आप पप्पू यादव ऐसा ही करते रहते हैं, या हो सकता है अभी तक जो उन्होंने कर दिया है ऑलरेडी उसकी बिना पर कोई कार्रवाई उन पर होती हुई आप देखें। बिल्कुल। और देखिए 20 जुलाई को दिल्ली में हिंसा को लेकर अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पुलिस के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हिंसा में घायल पुलिस वालों के परिवार का बयान भी सामने आया। परिवार ने बताई घायल पुलिस वालों की आप बीती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा सुप्रीम कोर्ट गए थे, उम्मीद करते हैं कि हमें भी न्याय मिलेगा, ये पुलिस वालों के परिजनों का कहना है। एक यूनिफॉर्म के पीछे सिर्फ एक पुलिस कर्मी नहीं होता, उसके पीछे होती है उसकी माँ, पिता, पत्नी, बच्चे और पूरा परिवार जो देर रात तक वेट करता है कि वो सकुशल घर लौट आए। और अब आपको जंतर मंतर के प्रदर्शन में घायल हुए एसआई की बेटी का बयान सुनवाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को लगभग लिंच किया गया, 4 दिन अस्पताल में भर्ती रहे, पिता पर हमला करने वाले ही सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। उनका दर्द भी सुनिए। मेरे बाबा पुलिस में आने से पहले मेरे फादर इंडियन नेवी में मैरीन कमांडो थे। उन्होंने इंडियन नेवी को अपने 15 साल दिए हैं। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था, पर मतलब उनके सर पे 4 टाँके आए हुए थे जो कि छोटी मोटी चोट नहीं थी। वो रात हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। और जब मैंने सोशल मीडिया खोल के देखा तो सोशल मीडिया पे मेरे ही पापा को क्रिमिनल बता रहे थे। और उसके अगले दिन ही जब मुझे पता चला कि जिन लोगों ने मेरे फादर पे अटैक किया था वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं अपना क्राइम सॉल्व करने और उन्हीं के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, सारे पुलिस वालों के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए, मुझे बहुत बुरा लगा। और मुझे लगा कि मुझे भी जाना चाहिए अपने फादर की जस्टिस के लिए। और मुझे बाकी पुलिस फैमिलीज का भी साथ मिला। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमने एडवोकेट से रिक्वेस्ट करी और एडवोकेट ने हमारी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। वहीं प्रदर्शन में घायल एएसआई की पत्नी का बयान, 33 साल से दिल्ली पुलिस में सेवा दे रहे पति ने बताया 20 जुलाई को भीड़ बहुत ज्यादा थी। मेरे पति दिल्ली पुलिस में एएसआई हैं। वो 33 साल की जो मेरे पति दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक एएसआई के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं। तो वो पुलिसकर्मी जो कि इस प्रदर्शन के दौरान वहां पर तैनात थे, उनके घर वालों पर क्या बीती, ये बयां करने की कोशिश की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। घायल एसीपी के बेटे लक्ष्य का बयान आया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता को 4 गैलेंट्री अवार्ड्स मिले हैं। पिता के सिर में गंभीर चोटें आई थी। पिता ने बताया वहां सिर्फ छात्र नहीं थे। हेलो, मेरा नाम लक्ष्य सिंह बिष्ट है। मेरे पापा एसीपी है जिन्होंने अपने पूरे करियर में 4 गारंटी हासिल करे हैं।
मेरे ग्रैंडफादर बीएसएफ में थे। उन्होंने 1971 की जंग में लड़ाई करी थी। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25 मई एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। और राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस। जी हां, बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नोटिस दिया है। इडियट अंधभक्त वाले बयान को लेकर यह नोटिस दिया गया है। तो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है और यह नोटिस किसने दिया, कहां दिया, क्यों दिया, पूरी डिटेल अब आपके सामने है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से यह नोटिस दिया गया है लोकसभा में। और राहुल गांधी जब अपना संबोधन दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो जो बयान उन्होंने दिया था उस पर ऑब्जेक्शन किया गया है क्योंकि उन्होंने इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का जिक्र अपने बयान में किया था। इसी को लेकर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की तरफ से यह विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया है। अनुराग ठाकुर की मांग क्या है कि मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए, यानी इस मामले को आगे ले जाने की कोशिश में बीजेपी नजर आ रही है। कहा गया है कि विस्तृत जांच के बाद इस मामले में एक्शन होना चाहिए। इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना सदन की अवमानना है। राहुल गांधी से सदन और अमित शाह से बिना शर्त माफी की भी डिमांड की गई है। तो कुल मिलाकर यह है पूरी खबर। और वहीं छात्रों के प्रदर्शन को लेकर राहुल गांधी का पोस्ट। जी हां, जेन-ज़ी को चुप रहने के लिए धमका नहीं सकते। पहले हड्डियां तोड़ी, अब FIR की और उनके अकाउंट बंद कर रहे हैं। आप भारत का अतीत हैं। राहुल गांधी का बयान। भारत के भविष्य के बारे में कैसा व्यवहार करते हैं, इस बारे में सावधान रहें। और वहीं संसद से एंटी पेपर लीक बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए ही युवाओं और छात्रों से सीधा संवाद किया। पिछले एक हफ्ते में प्रधानमंत्री का यह चौथा वीडियो संदेश था इंस्टाग्राम पर। पीएम ने पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में सुधार और विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। संसद के दोनों सदनों में एंटी पेपर लीक से जुड़ा अहम बिल पास हो गया। इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने अपने ही अंदाज में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने अपने नए वीडियो में बताया कि हर राज्य पेपर लीक से परेशान है। पेपर लीक करने वाले गैंग पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दोनों सदनों में कठोर कानून और प्रावधान वाले बिल को पास कर दिया गया है। संसद में ऐसा बिल पास किया गया है जो परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाता है। हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलें। ये पहला मौका नहीं है जब पेपर लीक के खिलाफ एक्शन को लेकर प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को छात्रों और पेपर लीक के मुद्दे पर पहला सेल्फी वीडियो शेयर किया, जिसमें परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार के कदमों की जानकारी दी गई। मैं जानता हूं कि
पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। इसके बाद 24 जुलाई को अपने वीडियो पर छात्रों से मिले सुझावों को लेकर प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। वहीं 26 जुलाई को पेपर लीक मामले में छात्रों का प्रदर्शन खत्म होने के बाद पीएम मोदी ने तीसरा वीडियो शेयर किया और इसमें परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का ऐलान किया। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। लगातार 4 वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री ने सीधे छात्रों और युवाओं से संवाद स्थापित करने की कोशिश की और ये संदेश देने की कोशिश भी की कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठा रही है। और संसद परिसर में आज एक अनोखी तस्वीर भी देखने को मिली। पप्पू यादव पुजारी के भेष में दान पात्र लेकर संसद पहुंचे। विपक्षी सांसदों ने दान पात्र में सांकेतिक दान दिया। उसके बाद पप्पू यादव दान पात्र लेकर आगे निकल गए। सांसदों ने पप्पू यादव को पकड़ा। यह विरोध प्रदर्शन अयोध्या चंदा चढ़ावा चोरी को लेकर था। आज लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तो स्पीकर ने पप्पू यादव के प्रदर्शन पर नाराजगी भी जताई। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम, पप्पू यादव पुजारी के भेष में बैठते हुए और फिर वहां पर चंदे के बॉक्स में सपा के कुछ सांसद चंदा डालते हुए और उसके बाद पप्पू यादव वहां से निकलते हुए चंदा की पेटी लेकर, और उसके बाद देखिए सपा सांसदों ने उनको पकड़ा और ये पूरा थिएट्रिक्स एक तरीके से दिखाई दे रहा है ताकि ये बताया जा सके कि चंदा चोरी का मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे को हम लगातार उठाएंगे। पप्पू यादव एक बार फिर से अपने इस अंदाज की वजह से सुर्खियों में, हालांकि लोकसभा स्पीकर ने इस पर आपत्ति भी जताई है। दिनेश, हमारे सहयोगी दिनेश गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। पप्पू यादव का ये अंदाज दिनेश कैसे देखा जाए? एक तरफ तो स्पीकर सदन की मर्यादा की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव हों या सपा के नेता हों, हर तरीके से, चाहे वो ये अभिनय ही क्यों ना हो, इस तरीके से भी इस विषय को हर रोज सुर्खियों में रखना चाहते हैं। जी, और दूसरे ये कि क्या ये संसद के नियमों के तहत है, क्या संसद के नियम इस बात की इजाज़त देते हैं? देखिए, अलग अलग तरीकों से ध्यान आकर्षित करने के लिए विशेष मुद्दे पर कोशिशें की जाती हैं। कभी किसी मुद्दे पर अगर विरोध या असंतोष जताना है तो कभी काले कपड़े, कभी काली पट्टी हाथ में बांधकर ये जताने की कोशिश की जाती है कि हम इसको लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये उससे 2 कदम आगे जाने वाली बात है। किसी एक मामले को एक नुक्कड़ नाटक की तरह संसद के परिसर में रखे जाने, एक प्रहसन की तरह परिसर में रखे जाने की बात है। और शायद इसीलिए स्पीकर इस बात को लेकर वार्न कर रहे थे कि इस तरीके से प्रदर्शन करना ठीक नहीं। अब सवाल ये है कि अभी आपने देखा गृह मंत्री को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने सदन के भीतर जो बातें कही थीं, उसको लेकर अनुराग ठाकुर की तरफ से विशेषाधिकार के संदर्भ में नोटिस दिया जा चुका है। अब अगर ये मामला प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाता है तो वहां इसको लेकर निर्णय लिया जाएगा और फिर क्या किया जा सकता है, सदन इस बारे में फैसला करेगा। क्या यहां पर भी सदन की गरिमा, क्योंकि विशेषाधिकार एक सदस्य का होता है,
सदस्य का तो होता ही है, लेकिन विशेषाधिकार सदन के संदर्भ में भी निहित हैं। तो क्या उसमें भी किसी के उल्लंघन के तौर पर इसको देखा जाएगा, और क्या इसको लेकर भी आने वाले दिनों में कोई कार्रवाई हो सकती है? बड़ी बात है। लेकिन यहाँ चढ़ावा चोरी एक गंभीर मुद्दा है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जो अभी तक हुआ वो नाकाफी है, और ये जो है वो निश्चित रूप से सरकार की नाकामी प्रदर्शित करता है। ये बात, ये संदेश देने के लिए विपक्ष यहाँ जो कर रहा है वो आपके सामने है। इधर समाजवादी पार्टी लगातार चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर गंभीर है और उसको सदन में बनाए रखना चाहती है, जीवित रखना चाहती है, और उसके लिए जो कर रही है वो आपके सामने है। और उधर आप देख रहे हैं आज जो कुछ भी हुआ दिनेश, उसमें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दलों के सांसद एक साथ थे। पहले पप्पू यादव जो हैं वो उन्होंने शुरुआत की इस पूरे के पूरे ड्रामे की, और उन्होंने पुजारी का भेष धरा, और उसके बाद पूरा जो प्रकरण है वो हमने देखा अपनी आंखों के सामने। और उसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद उनको पकड़ते नजर आए, यानी एक को चोरी करते हुए दिखाया गया और समाजवादी पार्टी के सांसदों को उनको पकड़ते हुए दिखाया गया। दोनों ही तस्वीरें हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। शुक्रिया दिनेश आपका। और अब बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। साल 2020 से पहले तक बच्चों की शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित थी, लेकिन नई शिक्षा नीति ने न सिर्फ शिक्षा को स्किल से जोड़ने का काम किया है, बल्कि यह संदेश भी दिया है कि सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि स्किल भी जरूरी है। और अब स्कूल से लेकर कॉलेज तक बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिससे वो नौकरी मांगने वाले नहीं बल्कि नौकरी पाने और रोजगार देने वाले बन सके। आखिर केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति कैसे युवाओं के भविष्य को संवार रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। देश को विकास की ओर आगे बढ़ाना है तो स्किल डेवलपमेंट ये हमारा मिशन है। पढ़ाई के साथ स्किल, ताकि डिग्री के साथ हुनर भी हो और हुनर के साथ रोजगार की राह भी आसान हो। बदलते वक्त के साथ दुनिया की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव हो रहा है, और इस बदलते शिक्षा व्यवस्था में भारत का भविष्य पीछे ना छूट जाए, इसी को ध्यान में रखकर अब केंद्र सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव कर रही है। जहां पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें, परीक्षा और डिग्री नहीं, बल्कि पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल स्किल और रोजगार की तैयारी भी है। साथ ही सभी वर्गों के युवाओं को सामान्य अवसर देना भी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 ने इसी सोच को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बनाया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती थी कि करोड़ों युवाओं को रोजगार के काबिल बनाया जाए। इसी सोच के साथ केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पढ़ाई के साथ स्किल आधारित शिक्षा बच्चों और युवाओं को दी जा रही है। इस नीति के तहत कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। इसमें कोडिंग, एआई, रोबोटिक्स जैसे आधुनिक विषय पर जोर दिया जाता है, ताकि भविष्य के रोजगार के लिए बच्चे और युवा पूरी तरह तैयार हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ज्ञान के साथ हुनर पर भी जोर दिया है, और अब बच्चे, आप अगर जाके देखें विद्यालयों में तो ऐसा ही हो रहा है कि हमारे बच्चे बहुत छोटी उम्र से ये सोचना शुरू कर दिए हैं, समझना शुरू कर दिए हैं कि मैं कर क्या सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी पर जोर देता है जो किसी भी देश को बदलने के लिए जरूरी है।
नई नीति का लक्ष्य है कि छात्र सिर्फ किताबी ज्ञान ही हासिल न करें, बल्कि वास्तविक जीवन और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार उनमें कौशल भी विकसित हों। इसके लिए स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम में तकनीकी व वोकेशनल कोर्स शामिल किए जा रहे हैं। दीक्षा और स्वयं प्लस जैसे पोर्टल्स के जरिए डिजिटल और स्किल आधारित लर्निंग को बढ़ावा मिल रहा है। कौशल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर विद्यालयों को स्किल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है ताकि युवाओं को हुनरमंद बनाया जा सके। कि स्किल्स और नॉलेज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी कि अगर आप गणित में नॉलेज ले रहे हैं तो गणित से जुड़ी उत्पन्न जो स्किल्स हैं उसको बच्चे को ग्रहण कराइए। छात्रों को स्थानीय उद्योगों और संस्थानों में इंटर्नशिप का मौका भी दिया जा रहा है ताकि पढ़ाई के साथ साथ उन्हें वास्तविक काम का अनुभव मिल सके। केंद्र सरकार का लक्ष्य है पढ़ाई और उद्योग के बीच दूरी कम करना, युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना, स्थानीय जरूरतों के अनुसार कौशल विकास और आत्मनिर्भर भारत को गति देना। केंद्र सरकार ने सिर्फ नीति ही नहीं बनाई बल्कि उसे धरातल पर भी उतारा। युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े स्तर पर स्किल डेवलपमेंट का नेटवर्क भी तैयार किया। आंकड़ों पर गौर करें तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 1.6 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण या ओरिएंटेशन का लाभ मिला। देश भर में 15,000 से अधिक ITI संचालित हैं, जहां लाखों विद्यार्थी तकनीकी प्रशिक्षण ले रहे हैं। 33 से अधिक सेक्टर स्किल काउंसलिंग उद्योगों की जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण मानक तैयार कर रहे हैं। स्किल इंडिया डिजिटल हब के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण और रोजगार संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सबसे बड़ा इनिशिएटिव जो है वो प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना का है। हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे भी हैं तो उनको बहुत तरह के ट्रेनिंग दिए गए, केंद्र बनाए गए जहां किए जा सकते हैं और जो पढ़ा है उसके आधार पर क्या कर सकते हैं ये सीखा, तो इसका बड़ा लाभ हुआ है। 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में पहला नया परिवर्तन साल 2020 में देखने को मिला, जब केंद्र की मोदी सरकार ने 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की, जिसका मॉडल बेहद सरल है। पहले पढ़ाई, फिर स्किल, फिर सर्टिफिकेशन और उसके बाद रोजगार की तरफ कदम। शिक्षा नीति का सबसे बड़ी शक्ति जो थी वो थी कि इसमें सबके विचारों का समन्वय किया गया था। भविष्य को देखते हुए जो गतिशीलता होनी चाहिए थे वो इसमें समाहित की गई थी और निश्चित रूप से जो समस्याएं आती थीं उनको ध्यान में रखा गया, बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया और नई जो तकनीकें आ रही हैं, नए विषय आ रहे हैं, नए कौशल आ रहे हैं, उस सबको भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाया गया। देश का भविष्य शिक्षित और हुनरमंद हो, इसे लेकर सरकार गंभीर है। यही वजह है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटित किया है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के केंद्रीय बजट में रिकॉर्ड 1,39,289 करोड़ रुपए का कुल आवंटन किया है, जिसमें से स्कूल शिक्षा के लिए 83,562 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 55,727 करोड़ का आवंटन किया गया है। बच्चों और युवाओं के भविष्य निर्माण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्रांतिकारी कदम उठा रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उसी मुकम्मल सपने को पूरा करने के दिशा में सबसे बड़ा कदम है। कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।